بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 31 اگست سن 1901۔ مامور الہی ہونے کی شہادتیں۔ فرمایا اس وقت میرے مامور ہونے کی بہت سی شہادتیں ہیں۔ اول اندرونی شہادت، دوم بیرونی شہادت، سوم صدی کے سر پر مجدد کی نسبت حدیث صحیح، چہارم انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون کا وعدہ حفاظت۔ اب پانچویں اور زبردست شہادت میں اور پیش کرتا ہوں، اور وہ سورہ نور میں وعدہ استخلاف ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ سورہ نور آیت 56۔ اس آیت میں وعدہ استخلاف کے موافق جو خلیفے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہوں گے وہ پہلے خلیفوں کی طرح ہوں گے۔ اسی طرح قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ فرمایا گیا ہے، جیسے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ سورہ مزمل آیت 16۔ اور آپ مثیل موسیٰ استثناء کے پیشگوئی کے موافق بھی ہیں۔ پس اس مماثلت میں جیسے کما کا لفظ فرمایا گیا ہے ویسے ہی سورہ نور میں کما کا لفظ ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ موسوی سلسلہ اور محمدی سلسلے میں مشابہت اور مماثلت تامہ ہے۔ موسوی سلسلہ کے خلفاء کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گیا تھا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 14ویں صدی میں آئے تھے۔ اس مماثلت کے لحاظ سے کم از کم اتنا تو ضروری ہے کہ 14ویں صدی میں ایک خلیفہ اسی رنگ و قوت کا پیدا ہو جو مسیح سے مماثلت رکھتا ہو اور اس کے قلب اور قدم پر ہو۔ پس اگر اللہ تعالیٰ اس امر کی اور دوسری شہادتیں اور تائیدیں نہ بھی پیش کرتا تو یہ سلسلہ مماثلت بالطبع چاہتا تھا کہ 14ویں صدی میں عیسوی بروز آپ کی امت میں ہو، ورنہ آپ کی مماثلت میں معاذ اللہ ایک نقص اور ضعف ثابت ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس مماثلت کی تصدیق اور تائید فرمائی بلکہ یہ بھی ثابت کر دکھایا کہ مسیح موسیٰ سے اور تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل تر ہے۔ فرمایا حضرت مسیح علیہ السلام جیسے اپنی کوئی شریعت لے کر نہ آئے تھے بلکہ تورات کو پورا کرنے آئے تھے، اسی طرح پر محمدی سلسلہ کا مسیح اپنی کوئی شریعت لے کر نہیں آیا بلکہ قرآن شریف کے احیاء کے لیے آیا ہے اور اس تکمیل کے لیے آیا ہے جو تکمیل اشاعت ہدایت کہلاتی ہے۔ تکمیل اشاعت ہدایت کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتمام نعمت اور اکمال الدین ہوا تو اس کی دو صورتیں ہیں، اول تکمیل ہدایت، دوسری تکمیل اشاعت ہدایت۔ تکمیل ہدایت من کل الوجوہ آپ کی آمد اول سے ہوئی اور تکمیل اشاعت ہدایت آپ کی آمد ثانی سے ہوئی، کیونکہ سورہ جمعہ میں جو آخرین منہم والی آیت آپ کے فیض اور تعلیم سے ایک اور قوم کے تیار کرنے کی ہدایت کرتی ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ایک بعثت اور ہے، اور یہ بعثت بروزی رنگ میں ہے جو اس وقت ہو رہی ہے۔ پس یہ وقت تکمیل اشاعت ہدایت کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اشاعت کے تمام ذریعے اور سلسلے مکمل ہو رہے ہیں۔ چھاپہ خانوں کی کثرت اور آئے دن ان میں نئی باتوں کا پیدا ہونا، ڈاک خانوں، تار برقیوں، ریلوں، جہازوں کا اجرا اور اخبارات کی اشاعت، ان سب امور نے مل ملا کر دنیا کو ایک شہر کے حکم میں کر دیا ہے۔ بس یہ ترقیاں بھی دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ترقیاں ہیں، کیونکہ آپ کی کامل ہدایت کے کمال کا دوسرا جز تکمیل اشاعت ہدایت پورا ہو رہا ہے، اور یہ اسی کے موافق ہے جیسے مسیح نے کہا تھا کہ میں تورات کو پورا کرنے آیا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ میرا ایک کام یہ بھی ہے کہ تکمیل اشاعت ہدایت کروں۔ غرض یہ عیسوی مماثلت بھی ہے۔ علاوہ بنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو آفتیں پیدا ہو گئی تھیں اسی قسم کی
यहां भी मौजूद हैं। और अंदरूनी तौर पर यहूदियों की हालत बहुत बिगड़ गई थी और तारीख से इस अमर की शहादत मिलती है कि तौरात के अहकाम उन्होंने छोड़ दिए थे और उसके बजाय तालमूद और बुजुर्गों की रिवायतों पर ज्यादा जोर देते थे। इस वक्त मुसलमानों में भी ऐसी हालत पैदा हो गई है, किताबुल्लाह को छोड़ दिया गया है और उसके बजाय रिवायतों और किस्सों पर जोर मारा जाता है। इसके अलावा सल्तनत के लिहाज से भी एक मुमासलत है। उस वक्त रोमी गवर्नमेंट थी और इस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जिसकी अदल इंसाफ का आम शोरा है। और ये मैं पहले बता चुका हूं कि वो भी 14वीं सदी में आए थे और इस वक्त भी 14वीं सदी है। इन सब के अलावा एक और सिर भी है जो मुमासलत को मुकम्मल करता है, और वो ये है कि हजरत मसीह अखलाकी तालीम पर जोर देते थे और मूसवी जिहादों की इस्लाह करने आए थे। उन्होंने कोई तलवार नहीं उठाई। मसीह माऊद के लिए भी यही मुकर्रर था कि वह इस्लाम की खूबियों की तालीम की अमली सच्चाइयों से कायम करे और इस एतराज़ को दूर करे जो इस्लाम पर इसी रंग में किया जाता है कि वो तलवार के जरिए फैलाया गया है। ये एतराज़ मसीह माऊद के वक्त में बिल्कुल उठा दिया जाएगा, क्योंकि वो इस्लाम के जिंदा बरकत और फयूज से उसकी सच्चाई को दुनिया पर जाहिर करेगा। और इससे साबित होगा कि जैसे आज इस तरक्की के ज़माने में भी इस्लाम माज अपनी पाक तालीम और इसके बरकत और समरात के लिहाज से मौसर और मुफीद है, ऐसा ही हमेशा और हर ज़माने में मुफीद और मौसर पाया गया है, क्योंकि ये जिंदा मजहब है। यही वजह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आने वाले मसीह माऊद की पेशगोई फरमाई, इसके साथ ही यह भी फरमाया याज़उल हरबा, वो लड़ाइयों को उठा देगा। अब इन सारी शहादतों को जमा करो और बताओ कि क्या ऐसा जरूरत नहीं कि कोई आसमानी मदद नाजिल हो। जब ये मान लिया गया कि सदी पर मुजद्दिद आना जरूरी है, तो इस सदी पर मुजद्दिद तो जरूर होगा। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुमासलत मूसा अलैहिस्सलाम से है, तो इस मुमासलत के लिहाज से जरूरी है कि इस सदी का मुजद्दिद मसीह हो, क्योंकि मसीह 14वीं सदी पर मूसा के बाद आया था और आजकल 14वीं सदी है। 14 की अदद को बड़ी मुनासबत है। 14वीं सदी का चांद मुकम्मल होता है। इसी की तरफ अल्लाह ताला ने वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला में इशारा किया है। आल इमरान आयत 124। यानी एक बद्र तो वो था जो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखालिफों पर फतह पाई। इस वक्त भी आपकी जमात, उस वक्त भी आपकी जमात कलील थी। और एक बद्र ये है, बद्र में 14वीं सदी की तरफ इशारा है। उस वक्त भी इस्लाम की हालत जिल्लतन की हो रही थी और अब भी हो रही है। सो इन सारे वादों के मुआफिक अल्लाह ताला ने मुझे मबूस किया है। अहदीस में यह भी आया है कि आने वाले माऊद के वक्त दुनिया जुल्म और ज़ूर से बरी हुई होगी। जुल्म और ज़ूर से यह मुराद नहीं कि उस वक्त हुकूमत जालिम होगी। जो लोग ये समझते हैं उस वक्त गलती करते हैं। आने वाले मसीह के वक्त में ज़रूरी है कि सल्तनत आदिल हो और अमन हो, और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमको ऐसी आदिल और अमन दोस्त गवर्नमेंट उसने अता की है जिसकी नज़ीर आज दुनिया के किसी सल्तनत में नहीं मिलती है। जैसे मसीह के ज़माने में रोमी गवर्नमेंट जो अपने अदल इंसाफ के लिए मशहूर थी, मगर हमारी गवर्नमेंट रोमी गवर्नमेंट से बदर जहाँ बेहतर और बढ़ चढ़ कर आदिल है। यहाँ तक कि उस मुकदमा में जो पादरी हेनरी मार्टिन क्लार्क की तरफ से मुझ पर हुआ था, कप्तान डगलस ने, जो उन दिनों गुरदासपुर का डिप्टी कमिश्नर था, बावजूद है कि बाज़ कोताह देशों का यह ख्याल था कि एक मौजूद पादरी की तरफ से मुकदमा है, लेकिन उस इंसाफ पसंद हाकिम ने असलियत को निकाल लिया और मालूम कर लिया कि वह मुकदमा बाज़ अदना दर्जे के आदमियों की चालाकी का नतीजा था। कप्तान डगलस जो आजकल दिल्ली में डिप्टी कमिश्नर हैं, हमेशा तक इस सदीमुल मिसाल इंसाफ के बायस मशहूर रहेंगे। और ये तो गवर्नमेंट के एक ओहदेदार की मिसाल है, और ऐसी हजारों लाखों मिसालें हैं। गरज अहदीस में आया है कि जब वो माऊद आएगा तो दुनिया जुल्म और जोर से बरी होगी। उसका मतलब यही है कि उस वक्त दुनिया में शिर्क और जोर का बहुत जोर होगा। चुनांचे इस वक्त देख लो कैसी बुत परस्ती, सलीब परस्ती, मुर्दा परस्ती और किस्म किस्म की परस्तश हो रही है, और हकीकी और सच्चे खुदा को बिल्कुल छोड़ दिया गया है। अब इन तमाम अमूर को यकजा करके दानिशमंद गौर करे कि जो कुछ हम कहते हैं क्या वो इस काबिल है कि सरसरी निगाह से इसे रद्द कर दिया जाए,
या ये कि इस पर पूरे गौर और फिक्र से काम लिया जावे। जो कुछ हमारा दावा है क्या ये सदी के सर पर है या नहीं, अगर हम ना आते तब भी हर एक अक्लमंद और खुदादर्स को लाजिम था कि वो किसी आने वाले का तलाश करता, क्योंकि सदी का सर आ गया था। और अब तो जबकि 20 बरस गुजरने को हैं और भी ज्यादा फिक्र की जरूरत थी। मौजूदा फसाद पुकार कर कह रहा था कि कोई शख्स इस्लाह के लिए आना चाहिए। ईसाइयत ने वो आज़ादी और बेकैदी फैलाई है जिसकी कोई हद ही नहीं है, और मुसलमानों के बच्चों पर जो उसका असर हुआ है उसे देखकर कहना पड़ता है कि मुसलमानों के बच्चे ही नहीं हैं। सारी बातों को छोड़ दो, इस सलीबी फितना ही की इस्लाह के लिए जो शख्स आएगा उसका नाम क्या रखा जाएगा? ये फितना बित्तबा अपनी इस्लाह करने वाले का नाम कासिर सलीब रखता है, और ये मसीह मऊद का दूसरा नाम है। कुरान और हदीस ने मुख्तलिफ तरीकों पर इस मजमून को अदा किया है और आने वाले मऊद की बशारत दी है। उसको खूब समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब इंसान नाक़िस तौर पर समझता है गोया कुछ नहीं समझता, लेकिन जब कामिल गौर और फिक्र के बाद एक बात को समझ लेता है फिर मुश्किल होता है कि कोई उसे गुमराह कर सके। इसलिए मैं आपको मशवरा देता हूँ कि इस सवाल को हल करने की खूब फिक्र करें। ये मामूली और छोटी सी बात ना समझें, बल्कि ये ईमान का मामला है, जन्नत और दोज़ख का सवाल है।